Continuing with this same chapter, the next topic is scaling. So, what is scaling? Scaling is a process or a set of procedures which is used to assess the attitude of an individual. ठीक है, ऐसा procedure है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ individual ਦਾ attitude assess ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. Scaling is defined as the assignment of objects to numbers according to a rule ਦੇ according ਕੀ ਆਪਾਂ numbers ਨੂੰ assign ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, comparative and non-comparative scaling techniques. ठीक है, comparative ਤੁਹਾਨੂੰ word ਤੋਂ ਹੀ clear ਹੋ ਰਿਹਾ, comparison ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ comparative, and non-comparative ਮਤਲਬ ਇਹ objects ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ independent ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ dependent ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ. that is your non-comparative scales. So first comes comparative scaling techniques. ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ paired comparison. Paired comparison ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Here a respondent is asked to show his preferences from among 5 brands of coffee. ठीक है, 5 ब्रांड ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ A B C D E, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ he is required to indicate his preference in pairs. ठीक है, वो पेयर विच प्रेफरेंस दसेगा. ठीक है, सो आप किवें नंबर ऑफ पेयर्स कैलकुलेट करने आप देखांगे. ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ n into n minus 1 divided by 2. ठीक है, that means ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 brands given ਸੀ A B C D any 5 brands. 5 into 5 minus 1 divided by 2, that means 5 into 4 divided by 2, 20 divided by 2, that is 10. that means ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 10 pairs ਬਣਨਗੇ. that means A and B, A and C, A and D, that means ਇੱਥੇ 5 and ਇੱਥੇ 5, that means total ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਗਏ 10 pairs. next ओके, अगर ਅਸੀਂ 15 ब्रांड्स इवैल्यूएट करने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 5 ਸੀਗੇ, अगर ਆਪਾਂ 15 ब्रांड्स ਕਰਾਂਗੇ इवैल्यूएट, दैट मीन्स ਤੁਹਾਡੇ 105 पेयर्ड कंपैरिजन्स बननगे. ठीक है, और यही इस मैथड की लिमिटेशन है, बिकॉज 105 पेयर्स बनाना इट इज़ वेरी टफ. जिवें मैंने एग्जाम्पल दसी है, फॉर ईच ऑफ पेयर ऑफ प्रोफेसर्स, प्रोफेसर का नेम गिवन है, please indicate the professor from whom you prefer to take classes with a 1. ठीक है, Cunningham 0 ठीक है, Day we have 1, Parker 1, Thomas 1. that means किन्नी preference हुई है? दी 3 हुई है, ओदी 1 हुई है Day दी, Parker दी 2 and Thomas दी 0. ठीक है, so respondents are presented with several objects simultaneously. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ object ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, simultaneously ਕਾਫੀ objects ਹੁੰਦੇ ਆ. ਦੂਸਰਾ, then asked to rank them according to some criteria. ਫਿਰ criteria ਦੇ according ਉਹ rank ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਭ ਨੂੰ objects ਨੂੰ rank ਦਿੰਦੇ ਆ. then data obtained are ordinal in nature, that means arranged or ranked in order of magnitude. and last ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ commonly used to measure प्रेफरेंसेस देखने हैं तो आप ये मैथड लगाने. ठीक है, नेक्स्ट जिवें आप होर इहदे विच क्या है, प्लीज रैंक द इंस्ट्रक्टर्स लिस्टेड बिलो इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. ठीक है, मोस्ट प्रेफरेंस 1 दो, असाइन अ 2 टू द इंस्ट्रक्टर यू प्रेफर इन द सेकंड, मतलब सब तो वधिया नूं 1 एंड सब तो थल्ले नूं 4. दैट मीनस कनिंघहाम नूं 1 मिलिया, 2 मिलिया पाकर नूं, 3 डे नूं 4th मिलिया थॉमस ਨੂੰ. ਨੈਕਸਟ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਗਿਆ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸਮ ਸਕੇਲਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮ ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਡ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ. ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਟੋਟਲ ਸਮ ਸਭ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 100. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਫੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਟੈਸਟ. अवेलेबिलिटी जो 30 मिल रही है, ये 35, ये 25. ठीक है, इस अकॉर्डिंग की आप अवेलेबिलिटी सब दे हो गया, दैट इज़ 100. फिर फेयरनेस दैट मीन्स 100, इजी टेस्ट 100. ठीक है,
Next comes non-comparative scaling techniques, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਫਰਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ फर्स्ट आ गया थोड़ा लास्ट मैथड विच आप डिस्कस की है कॉन्स्टेंट सम स्केलिंग। दूसरा सीगा रैंक ऑर्डर स्केलिंग। रैंक ऑर्डर आप ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि आप इस पर्सन को रैंक्स दिते। एंड थर्ड आंदा थोड़ा कॉन्स्टेंट सम, दैट मीनस तुहानू एक सम दिता होया आप उस अकॉर्डिंग ही पर्सनस नू नंबर असाइन करने हैं। ये थोड़े सीगे 3 मैथड्स कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक विच। दूसरा थोड़ा आंदा है कॉन्स्टेंट सम नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक। ये फर्स्ट आंदा है लिकर्ट स्केल। सो व्हाट इज लिकर्ट स्केल? ठीक है, स्केल विच आपां स्केल के अकॉर्डिंग आप रेटिंग करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज समेटेड रेटिंग स्केल। हुंदा की है सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स होंदियां ने कंसर्निंग एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। ईच स्टेटमेंट हैज़ 5 पॉइंट्स किहड़े हुंदे एग्री एंड डिसएग्री ऑन द स्केल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड समेटेड स्केल्स। सो लिकर्ट स्केल इज बेसिकली आप की करते हैं 5 पॉइंट्स लगा लें एग्री एंड डिसएग्री ऑन द स्केल। ठीक है, आप समेटेड स्केल्स भी कहने बिकॉज स्कोर जो आप इंडिविजुअल कोई भी आइटम का लगाने हो आप स्केल के अकॉर्डिंग ही लगाने। ठीक है, ये की पॉइंट्स हो सकते हैं स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल हो गया मतलब नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री, एग्री फिर स्ट्रॉन्गली एग्री। सो ये थोड़े की होंगे है लिकर्ट स्केल उपर 5 स्केल्स के अकॉर्डिंग आप नंबर्स अपनी असाइनमेंट करते हैं। नेक्स्ट कम्स सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। दैट मीनस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ लास्ट स्केल ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ जो पढ़िया है हाँ लिकर्ट स्केल ਵਿੱਚ ਉਹ 5 पॉइंट्स का ਹੁੰਦਾ है एंड जो सिमेंटिक है वो थोड़ा होएगा 7 पॉइंट स्केल। ठीक है, सो जो लिखा भी है ईच पेयर ऑफ एडजेक्टिव इज सेपरेटेड बाय अ 7 पॉइंट स्केल। ठीक है, ये 7 पॉइंट्स होंगे स्केलिंग के बेस पर। जिमें आप एग्जाम्पल देखिए द रिस्पोंडेंट्स वर आस्क्ड टू टिक वन ऑफ द 7 कैटेगरीज विच डिस्क्राइब्स देयर व्यूज ऑन एटीट्यूड। ठीक है, कि बेस पर लिता कि आप कोई प्रोडक्ट की पैकेजिंग नू देखना तो आप की देखांगे। फर्स्ट आएगा डिलाइटेड, फिर प्लीज्ड, मोस्टली डिसैटिस्फाइड, इक्वली सैटिस्फाइड एंड डिससैटिस्फाइड, फिर मोस्टली डिससैटिस्फाइड, अनहैप्पी एंड टेरेबल। ठीक है, सो ये थोड़ा हुंदा है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। नेक्स्ट कम्स योर थर्स्टन स्केल। थर्स्टन स्केल की कहंदा है इहदे विच आपां की करना है पहला स्टैप की हुंदा आपां लार्ज नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बना लेनिया ने जिदे उपर आप मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द एटीट्यूड टू बी मेजर। स्टेप 2 की आंदा है दी स्टेटमेंट्स 75 to 100 आप ग्रुप ऑफ जजेस बनाए होंगे जिमें 20 to 30 आप ग्रुप बनाए हैं। वो आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ फेवरेबल तो अनफेवरेबल के अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट्स बना लें। 75 तो लैके आप 100 तक के स्टेटमेंट्स बनाने। स्टेप 3 की है 11 पाइल्स आर टू बी मेड बाय जजेस। फिर उस तो बाद कट शॉर्ट करके आप 11 पाइल्स बना लेनी है। ठीक है, सो मोस्ट फेवरेबल पाइल 1 विच आएगी, न्यूट्रल 6 विच एंड मोस्ट फेवरेबल स्टेटमेंट आएगी थोड़ी पाइल 11 विच। ठीक है, सो फर्स्ट ते मोस्ट अनफेवरेबल, 6th ते थोड़ी आएगी न्यूट्रल एंड लास्ट विच फेवरेबल स्टेटमेंट। स्टडी द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेटिंग्स फॉर ईच स्टेटमेंट एंड एलिमिनेट दो स्टेटमेंट्स विद विच डिफरेंट जजेस हैव गिवन वाइडली स्कैटर्ड रेटिंग। सो आप देखना है कि सानू की रेटिंग मिली है हर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो आप वो स्टेटमेंट एलिमिनेट कर देनी है जो कि सब तो अलग लग रही है या सब तो अलग स्कैटर्ड है या डिफरेंट थोड़ी जजमेंट आती है। एंड सिलेक्ट 1 or 2 स्टेटमेंट्स फ्रॉम ईच 11 पाइल्स फॉर द फाइनल स्केल। हर एक पाइल विचों आप एक या 2 स्टेटमेंट पिक कर लेनी है। सो द रिस्पोंडेंट्स हू एटीट्यूड्स आर टू बी स्केल्ड वर गिवन द लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड आस्क्ड टू इंडिकेट देयर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विद ईच स्टेटमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल है कि क्राइम एंड वायलेंस इन मूवीज। ठीक है,
फर्स्ट विच की आ गया मोस्ट अनफेवरेबल, ठीक है। सब तो पहला आप लिखते हैं कि एक क्राइम की वायलेंस प्रोहिबिट होना चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिक्स्थ विच लिखिया न्यूट्रल, आई हैव नो ओपीनियन वन वे और द अदर अबाउट वॉचिंग मूवीज विद क्राइम एंड वायलेंस, ठीक, ये आ गया। एंड लास्ट आया थोड़ा फेवरेबल, वॉचिंग क्राइम इन अ मूवी डज नॉट हार्म आर लाइफ स्टाइल। सो आप यही पढ़िया सी, सब तो पहले तो थोड़ी मोस्ट अनफेवरेबल, सिक्स्थ ते थोड़ी आएगी न्यूट्रल एंड लास्ट विच आएगी थोड़ी फेवरेबल। तो आप कंक्लूजन ये ड्रॉ की, रिस्पोंडेंट माइट एग्री विद द स्टेटमेंट 8, 9 एंड 10, लास्ट विच जो 8, 9 एंड 10 है, सच स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ए फेवरेबल तुहानू एटीट्यूड दसणगे, ठीक है। 1, 3 एंड 4 ये थोड़े की है अनफेवरेबल शो करेगा। 1, 5 एंड 11 थोड़े इंटरप्रेटेड टू इंडिकेट दैट इट इज नॉट कंसिस्टेंट, दैट मीन्स ओ न्यूट्रल है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, दैट इज योर मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। विजुअलाइजिंग द लेवल ऑफ सिमिलैरिटीज, ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ फाइंड आउट करते हैं, दैट इज योर मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। एग्जाम्पल की है, assume there are 5 insurance companies to be evaluated on 2 attributes, namely convenient locality ਤੇ courteous personal service, कितनी convenience है तानू ते वो service किवें दे रही है, ठीक है। So customer perception regarding the 5 insurance companies are as follows, ठीक है। inconvenient की है courteous, convenient and not courteous। So A, B, C, D, E and A 5 insurance companies है तो जो given है, according to the map B and E are B ते E, ठीक है, they are dissimilar insurance companies, ठीक है। C जो है वो थोड़ी की है बहुत कन्वीनियंट विच आ रही है, A जो है वो लेस कन्वीनियंट है एज कंपेयर टू E, D इज लेस कन्वीनियंट इन लोकेशन देन C, ठीक है, लेस कन्वीनियंट है, एंड E इज लेस कन्वीनियंट लोकेशन कंपेयर टू D। सो दैट इज आप हर चीज़ की कर रहे हैं विजुअल फॉर्म च देख रहे हैं कि आप की चीज़ सिलेक्ट करके डाटा इंटरप्रेट करना है। नेक्स्ट कम्स योर स्टेपल स्किल्स। स्टेपल स्किल्स की है मॉडर्न वर्जन्स ऑफ स्टेपल स्केल प्लेसेस अ सिंगल एडजेक्टिव एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द सिमेंटिक डिफरेंशियल, ठीक है। दैट मीन्स ये एडवांस फॉर्म की दी है, सिमेंटिक टेक्निक की एडवांस फॉर्म आती है, ठीक है। सो इट मेजर्स द रिस्पोंडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट और इवेंट, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं कि पर्सन का, ठीक है, एक पर्सन का रिस्पोंडेंट का उस टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट या इवेंट उपर की रिस्पॉन्स आप उस स्टेपल स्केल्स विच पढ़ते हैं। नैक्सट कम्स क्राइटेरिया फॉर गुड टेस्ट, ठीक है। ये 2 क्राइटेरिया आते हैं, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। सो व्हाट इज रिलायबिलिटी एनालिसिस। रिलायबिलिटी की कहता है कि मैं किस एक्सटेंट तक मेरी जो मेजरमेंट हुई है वो एरर्स तो फ्री है। रिलायबिलिटी डील्स विद द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। द स्केल इज सेट टू बी रिलायबल इफ इट यील्ड्स द सेम रिजल्ट्स विद रिपीटेड मेजरमेंट्स। अगर आप बार बार ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ सही डाटा, कितना एक्यूरेसी डाटा, एक्यूरेट डाटा मिल रहा है, दैट इज योर रिलायबिलिटी। जिवें एग्जाम्पल गिवन है, एटीट्यूड टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट और अ ब्रांड प्रेफरेंस। सो आप रिलायबिलिटी किवें चेक कर सकते हैं कि रिस्पोंडेंट्स जो है एक्चुअल प्रैक्टिस विच किन्नी वारी वो प्रोडक्ट नूं यूज़ कर रहे हैं, दैट इज उन्नी उन्हां दी ब्रांड दी प्रेफरेंस होएगी। नेक्स्ट कम्स योर वैलिडिटी एनालिसिस। दैट मीन्स जो भी मैं डाटा कलैक्ट किया है वो किस एक्सटेंट तक डिज़ाइन आप किया है। इट इज़ एक्सटेंट दैट इंस्ट्रूमेंट मेजर्स व्हाट इट वाज डिज़ाइन टू मेजर, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट मैं डिज़ाइन किया सी वो किस एक्सटेंट तक उन्हें वो मेजरमेंट की है,
किन्नी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਨੈਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 7 ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਟ ਵੈਲਿਡਿਟੀ। A sales manager believes that there is a clear relation between job satisfaction for a person and the degree to which a person is an extrovert and the work performance of his sales force। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ परफॉर्मेंस से बेस ऊपर। ठीक है, सो देयरफॉर जो पर्सन इंजॉय करे अपनी जॉब सैटिस्फैक्शन वो ऑब्वियसली एक्सट्रोवर्ट होएगा, अपनी चीज़ा बहुत खुल के बोलेगा तो इसलिए अपनी हाई परफॉर्मेंस वधिया तो वधिया परफॉर्मेंस देगा। इफ़ दे डू नॉट दैन वी कैन क्वेश्चन ही द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ऑफ द मेजर, तो उस टाइम आप ये पर क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। दूसरा आंदा है कंटेंट वैलिडिटी। A researcher should define the problem clearly, identify the item to be measured, involve a suitable scale for the purpose। That means आप जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कितना वैलिड है, दैट इज योर कंटेंट वैलिडिटी। डिस्पाइट दीज द स्केल में बी क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग लैकिंग इन कंटेंट वैलिडिटी। दैट मीनस आप कुछ भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और कंटेंट कितना है, कितना वैलिड है, ਉਹਦੇ बेस पर आप देख सकते हैं कि कितना वो डाटा एक्यूरेट है, कितना एप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट कम्स प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। दिस परटेन्स टू हाउ बेस्ट अ रिसर्चर कैन गेस द फ्यूचर परफॉर्मेंस फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एटीट्यूड स्कोर। दैट मीनस ये वो चीज़ है जिहदे विच रिसर्चर गैस कर सकता कि फ्यूचर विच की परफॉर्मेंस होएगी। ठीक है, एन ओपीनियन क्वेश्चनियर विच इज़ द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट हैज़ प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। ठीक है, कि आप देखते हैं कि फ्यूचर विच वो चीज़ आ, या अगर मैं रिस्पोंडेंट नूं किसी न्यू चीज़ नूं सर्वे कर रही हूँ तो उन्होंने फ्यूचर विच चीज़ है कि रिस्पॉन्स होएगा, आप पास से फ्यूचर रिजल्ट्स नूं कंपेयर कर सकते हैं। नैक्सट आ गया थोड़ा क्राइटेरियन वैलिडिटी। ये की हुंदा आप क्राइटेरियन विच हुंदा कि उन्होंने आप कॉन्क्रीट वैलिडिटी भी बोलते हैं। एग्जामिन्स वेदर measurement scale performs as expected in relation to other variables selected as meaningful criteria। that means जो आप सोचिया सीगा, predicted किया सी ते जो actual चीज़ हुई है, ठीक है, वो comparison करके देखते हैं वो सही हुई है कि नहीं, and addresses the question of what construct or characteristic the scale is actually measuring। ठीक है, next comes conversion validity। conversion means अब अपना सेल्फ वर्थ स्किल्स देखते हैं या कॉन्फिडेंस देखते हैं। ठीक है, दैट इज योर कन्वर्जन वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट दैट मीन्स एक चीज़ है दूसरे नाल कितना डिफरेंस है, दैट इज योर डिस्क्रिमिनेंट। एंड नोमोलॉजिकल वैलिडिटी दैट मीन्स इट इज extent to which scale correlates in theoretically predictive ways with measures of different but related constructs। ठीक है, with the time जो चीज़ चेंजेस आ रही है आप ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਏਜ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ 2 ਮੈਥਡਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਟੈਸਟ क्राइटेरिया फॉर गुड टेस्ट ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 एटीट्यूड्स लगा के 2 क्राइटेरिया लगा के अपनी वैलिडिटी ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ लगा के ਆਪਾਂ क्राइटेरिया लगाने अपने अच्छे टेस्ट वास्ते। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर मेजरमेंट एंड स्केलिंग techniques।